So very glad to meet all of you again through this Zoom. और इस जूम के माध्यम से फिर एक बार आप सबको मिल पाने में मैं बहुत खुश हूँ। God has been good to us in these past months. इन पिछले महीनों में परमेश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत भरा रहा है। Brother, I hope my audio is fine. यस यस ब्रदर। Okay. Yeah. So today for our meditation, we'll take First John, the epistle of First John. और आज हमारे मनन के लिए हम पहला यूहन्ना इसके पत्री की ओर मुड़ेंगे। I think your volume is slightly low. You can increase the volume or okay. I don't know how others feel. ओके I'll just try. You can come closer to the mic, or if you have a Yes, it's low. Yeah. Shall we proceed? Yes brother. Yeah. So John the Apostle, he was a disciple loved by God, loved by Jesus, and he loved Jesus very much. और यूहन्ना ये जो प्रेरित था वो प्रभु से प्रेम करता था और प्रभु भी उससे बहुत प्रेम करता था। And many of the disciples who served Jesus, they all died at a very early stage. और कई जो प्रेरित थे जो यीशु का अनुसरण करते थे, बहुत जल्दी उनके आयु में उनकी मृत्यु हो गई। But this one apostle, he lived a long life. और एक जो प्रेरित है, ये यूहन्ना प्रेरित है, उसने एक लंबा जीवन जिया। Church history says that he lived up to 95 years. और कलीसिया की इतिहास हमें बताता है कि वो 95 वर्ष के आयु तक जिया। So he has seen the ups and downs of the early Christianity. और उसने शुरुआती मसीहत के उतार चढ़ाव सब देखे हैं। So it is very important that we need to find out what he has written after so many years of experience as a disciple of Jesus and also as a person who has seen the early church. और अब बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि एक यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते और शुरुआती कलीसिया के होने के नाते उसको वो क्या कहना चाहता है। When you turn to the first epistle of John chapter 1, जब हम निकालते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, he talks about the life the disciples have seen in Jesus. और वो उस जीवन की बात करता है जो शिष्यों ने यीशु मसीह में देखा। Especially the first two verses emphasizes the life that they have seen. विशेषकर पहले दो वचन जो है वो उस जीवन पर जोर देते हैं जिस जीवन को शिष्यों ने उनमें देखा। And it is the word. और वो एक वचन है। He says, we have heard, we have seen with our eyes, we have beheld and our hands handled concerning the word of life. और वो कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। Definitely that refers to Jesus Christ. और निश्चित तौर पर ये यीशु के संदर्भ में ये वचन है। Because the same apostle John wrote the John's gospel. क्योंकि यही प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार भी लिखा। That he writes, in the beginning was the word was with God and the word was God. और वहां वो लिखता है आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And the word became flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच डेरा डाला। So here also he talks about the life of Jesus which was manifested. और यहाँ भी वो यीशु के जीवन के बारे में लिखता है जो प्रकट हुआ था। When you turn to second chapter, और जब हम दूसरे अध्याय की ओर मुड़ते हैं, he talks about children do not commit sin. वो बात करता है कि बच्चों पाप ना करो। And Jesus Christ is the propitiation. और वो कहता है यीशु मसीह जो है वो पापों का प्रायश्चित है। Yeah. And he says we have to walk like Jesus walked. और फिर वो कहता है कि छठे वचन में जैसे यीशु चलता है वैसे ही हमें चलना है। And he says hating one's brother is a very serious sin. फिर वो कहता है अपने भाई से नफरत करना ये एक बहुत गंभीर पाप है। And also he says how a young man can overcome the devil by the word of God and by the power of the Holy Spirit. उसी के साथ साथ वो कहता है कैसे एक जवान व्यक्ति शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। And in the 17th verse, 16th verse, he says the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life.
और 17 वचन में वो हमें बताता है कि संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड 16वें वचन में। Nowhere we read about the summary of sin. और पाप की इस प्रकार से एक छोटे इसमें सब बताना हम बाइबल में और कहीं नहीं पढ़ते। Every sin can be contained in these three titles. और इस सारांश में इन 3 जो शीर्षकों में हर एक पाप हम पाते हैं। Lust of the eyes. आंखों की अभिलाषा, I want more, more, more. Whatever I see, I want to buy. जो भी मैं देखना चाहता हूँ मुझे ज्यादा 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 चाहिए, जो भी मैं देखूं मैं खरीदना चाहता हूँ। Whatever beautiful I see, I want to have. I want to possess. जो कुछ सुंदर मुझे दिखता है वो मैं अपने आप के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। There is the lust of the eyes. वो है आंखों की अभिलाषा। We need to have a control over the eyes. हमारे आंखों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। And lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा, All sexual lust. सब प्रकार की यौन संबंध की वासना, Lust to be lazy. या लालसा, आलसी होने की लालसा, Lust to eat. खाना भोजन करने की लालसा, Gluttony. और पेटू होना, बहुत खाना। So many sins come under this lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा में कई पाप इस श्रेणी में आते हैं। And then pride of life. और फिर जीविका का घमंड या जीवन का घमंड, Despising somebody. किसी को तुच्छ जानना, Selfishness. स्वार्थ, So many things. कई Pride. चीजें, घमंड। So a very, in a nutshell, he's telling the sin. और बहुत ही सारांश में, संक्षिप्त में वो पूरे पाप को वहां बयां करता है। So when we search our hearts, it is better to search based on these three things. और जब हम अपने हृदयों को जांचते हैं तो अच्छा है कि हम इन 3 क्षेत्रों में अपने हृदयों को जांचें। Lord, did I have the lust of the eyes today or this week? प्रभु, आज या इस हफ्ते में आंखों की अभिलाषा मेरी थी क्या? Did I yield myself to the lust of the flesh? या शरीर की अभिलाषा के प्रति मैंने अपने आप को समर्पित किया क्या? Our body doesn't want a disciplined life. हमारा शरीर एक अनुशासित जीवन नहीं चाहता, It wants to do its own desires. वो अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। But we should never yield to that. पर हमें कभी उससे राजी नहीं होना है। We should yield to what the Spirit of God is telling. हमें उसके प्रति अधीन होना है जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है। The Spirit of God will talk to us through our spirit. और परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। And we need to walk by the Spirit. और हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। Romans 8:14 we read, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और रोमियो 8:14 कहता है कि जितने पवित्र आत्मा के परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Then this chapter also tells about the anointing of the Holy Spirit. और ये अध्याय हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में भी बताता है। Because only through the anointing of the Holy Spirit we receive spiritual strength. क्योंकि केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। And then we come to the third chapter of 1 John. फिर हम पहले योना के तीसरे अध्याय में आते हैं। The first verse, पहला वचन, it talks about we being the children of God. वो बात करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Behold, what manner of love the Father has given to us that we should be called the sons of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। And it talks about all the characters if we are the children of God. और अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो क्या हमारे चरित्र या गुण होंगे, उनके विषय में वो कहता है। And fourth chapter, he talks about the wrong doctrines, चौथे अध्याय में वो गलत शिक्षाओं के बारे में बताता है। wrong spirits in the last days. अंतिम दिनों में गलत जो आत्माएं हैं उनके बारे में। And he says we need to have a discerning spirit. और फिर वो कहता है कि हमें एक परखने की आत्मा होने की आवश्यकता है। And whatever we listen to, we should not believe everything that we listen to. और जो भी हम सुनते हैं उनको उसके बारे में हमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। First, we have to check whether it is according to the scriptures. हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि वो वचन के अनुसार है कि नहीं। And second thing, sometimes it may be the scripture, but the spirit may be wrong. दूसरी बात, कभी कभी चीजें बाइबल से हो भी सकती है पर उनके पीछे की आत्मा गलत हो सकती है। We need to have discernment. हमें परखने की जरूरत है। See, somebody may be a legalist. शायद कोई लोग बड़े विधिवादी होंगे। We may think that they are too spiritual. हमें लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा आत्मिक है। But when you listen to them, you get the condemnation. पर जब आप उन्हें सुनते हो तो आपको केवल दंडाज्ञा की भावना ही होती है। You get discouraged. आप निराश हो जाते हो। That is legalism. ये है विधिवादी होना। A person who is a legalist, he will try to control your life. कोई विधिवादी व्यक्ति वो आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा।
So if we want to protect ourselves, we need to have discernment. और अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें परखने की क्षमता होनी चाहिए। So fourth chapter, he deals with the right kind of doctrine, right kind of spirit, and we need to have discernment. चौथे अध्याय में इसलिए वो सही प्रकार की शिक्षा, सही प्रकार की आत्माएं और परख की आवश्यकता के बारे में बात करता है। When we come to the fifth chapter, जब आप 5वें अध्याय में आते हो, he talks about again being a child of God and the importance of loving the children of God. फिर एक बार वो बात करता है परमेश्वर की संतान होने के विषय में और परमेश्वर के संतान उसे प्रेम करने के विषय में। Now we'll take the second chapter, third chapter, first verse. अब हम निकालेंगे तीसरा अध्याय उसका पहला वचन। Behold, what manner of love the Father has lavished on us, that we should be called the sons of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। Yeah, some versions say bestowed. और कुछ जगह लिखा है कि परमेश्वर ने हम पर कैसी मानो कोई कृपा की या हमें कोई दान दिया है। Some translation says lavished. और कुछ जगह लिखा है कि बहुत उदारता से उसने वो हमें दिया है। Yeah, see, just because we are called the children of God, God has lavishly loved us. और केवल इसलिए कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर ने बड़े उदारता से हमसे प्रेम किया है। That Bible says it is a great love. और बाइबल हमें बताती है वो एक महान प्रेम है, बड़ा प्रेम है। So we have to see the greatness of that love, that we are called the children of God. और हमें उस प्रेम की महानता को देखना है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। It doesn't come very easily. ये बड़े आसानी से नहीं आता। One cannot easily become a child of God. कोई व्यक्ति आसानी से परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। Jesus has paid the price, very costly price. यीशु ने कीमत चुकाई है, बहुत ही भारी कीमत उसने चुकाई है। He gave his precious blood and his life. उसने अपना बहुमूल्य लहू और अपना जीवन दे दिया है। That much of love the Father has given. उतना प्रेम पिता ने हमें दिया है। Why? क्यों? So that you and I can become the children of God. ताकि आप और मैं परमेश्वर की संतान बन पाए। So it is a great love God has lavished upon us. और इसलिए ये एक महान प्रेम है जो परमेश्वर ने हम पर उदारता से उंडेला है। And this world does not know the greatness of the child of God. और ये संसार उस महानता को नहीं जानता परमेश्वर के एक संतान के। You go to a worldly person and say, I am a child of God. अगर किसी सांसारिक व्यक्ति के पास जाकर आप कहोगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, They will laugh at us. वो हम पर हंसेंगे। They think that something is wrong in our mind. उन्हें लगता है कि हमारे मन में कुछ गलत है। They think that we are off the mind. उन्हें लगता है कि हम मानो पागल हो चुके हैं। That's what the first verse says. यही पहला वचन कहता है। Because the world does not know the Father, God as the Father, they do not know us also. क्योंकि ये संसार परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानता, इसलिए वे हमें भी नहीं जानते। They do not know what value we have. वो नहीं जानते कि हमारा क्या मूल्य है। We are very valuable to God. हम परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। Because Jesus has purchased us by his own precious blood. क्योंकि यीशु ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। We read that in the 1 Peter chapter 1. हम इसे पहले पत्रस के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। We are not redeemed by the silver and gold, by the precious blood of Jesus Christ. और सोना चांदी ऐसे नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हम छुड़ाए गए हैं। So everybody wants to be called as a child of God. और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान कहलाया जाना चाहता है। Yeah, I want to be called the child of God. मैं भी चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊं। I want all the blessings of the child of God. परमेश्वर की संतान होने की जितनी आशीषें हैं, मैं सारी आशीषें चाहता हूं। But whenever you say you are a child of God, पर जब भी आप कहते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, you also have a responsibility. तब आपकी एक जिम्मेदारी भी है। See, when I was studying in the school, I think 10th or 11th standard, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, शायद 10वीं या 11वीं कक्षा में, I had a dream. मुझे एक सपना था। I was like, NCC scout, they all do the march past. और एनसीसी में था, मैं स्काउट था और वो सारे जो मार्च पास्ट होते हैं मैं करता था। So I was one of the members of many children. और कई बच्चों में से मैं भी एक था। And the person who conducts the exercise, he was telling, और जो व्यक्ति उस व्यायाम को करवा रहा था वो ये कह रहा था, every blessing comes along with a responsibility. हर एक आशीष के साथ एक जिम्मेदारी होती है। Yeah, it is a package. और वो दोनों एक पैकेज में है। You can't say I will only pick up the blessings but not the responsibility. आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल आशीष उठा लूंगा पर जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। Every blessing always comes with a responsibility.
हर एक आशीष हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ ही होती है। Yeah, in the same way, when you say you are a child of God, बिल्कुल वैसे ही जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, a child of God is a blessing परमेश्वर की संतान होना एक आशीष की बात है, because God protects you. क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है। God gives you the inheritance. वो आपको एक विरासत देता है, He gives us the spiritual blessings. वो हमें आत्मिक आशीषें देता है, He protects us like the apple of the eye. वो हमें अपने आंखों के पुतली के समान सुरक्षित रखता है। Anyone who touches you touches the apple of God's eye. कोई भी जो तुम्हें छुएगा वो परमेश्वर की पुतली के आंखों के पुतली को छू रहा है। All our hairs are numbered. हमारे सारे बाल भी गिने हुए हैं। Without His knowledge, nothing will happen to us. उसके ज्ञान के बिना हमें हमारे साथ कुछ नहीं होगा। All these blessings are not for everybody, ये सारे आशीष सबों के लिए नहीं है, only for God's children. केवल परमेश्वर के संतानों के लिए। And some of the blessings are reserved only for those who want to follow Jesus as disciples. और कुछ आशीषें तो केवल उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित है जो यीशु मसीह के शिष्य बनकर चलना चाहते हैं। Behold, I am with you until the end of this world. और जैसे मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, It is a promise. ये एक वायदा है, It is a blessing. वो एक आशीष है। But for whom did he say? पर किन के लिए ये आशीष है? It is for the disciples वो शिष्यों के लिए है who want to obey Jesus. जो यीशु की आज्ञा मानना चाहते हैं। What are they are supposed to obey? पर उन्हें किन बातों की आज्ञा माननी है? Go into the uttermost part of the world to proclaim the gospel. संसार के छोर छोर तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। And Jesus says, all authority is given unto me. और यीशु कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So if you are under the authority of God, अगर आप परमेश्वर के अधिकार के अधीन हो तो, authority of Jesus, यीशु के अधिकार के अधीन हो तो, and you are doing part of the work of evangelization or telling to others about God, और सुसमाचार प्रचार करने का या दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताने का काम अगर आप कर रहे हो तो, or teaching all that Jesus has taught, या जो भी यीशु ने सिखाया वो आप लोगों को सिखा रहे हो तो, yeah, that is a great commission. Matthew chapter 28 and verse 18-19 we read. और ये यीशु की महान आज्ञा है। मत्ती 28 उसका 19-20 वचन में हम ये पढ़ते हैं। Yeah, I would like to read that. Matthew chapter 28. मैं उन वचनों को पढ़ूंगा। मत्ती उसका 28 अध्याय, Yeah, and verse 18. उसका 18 वचन। And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। Yeah. So with whom Jesus says, I will be with you. कौन लोग हैं जिनसे यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा? Anyone who is teaching them to observe all that Jesus has commanded. कोई भी व्यक्ति जो उन लोगों को ये सिखाता है वो सब जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है। Say this great commission is given to the body of Christ. ये महान आज्ञा मसीह की देह को दी गई है। So we cannot do everything. और इसलिए हम सब कुछ नहीं कर सकते। See, our body, each organ does one job. हमारे शरीर में हर एक अंग एक एक कार्य करता है। Eyes, it can only see. आंखों का काम केवल देखना है। And ear can only hear. और कान केवल सुन सकते हैं। And mouth can chew. और मुंह केवल चबा सकता है। So, and talk. और मैं बात कर सकते हैं। Mouth cannot walk. और मुंह जो है वो चल नहीं सकता। The same way the body of Christ, every organ, every member is doing some work. बिल्कुल वैसे ही मसीह की देह में हर एक अंग जो है, हर एक अवयव जो है वो कुछ ना कुछ काम करता है। See, now I am talking. देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ। I am sharing the word. मैं परमेश्वर के वचन को साझा कर रहा हूँ। The dear brother who is translating for me, he is also doing that. Unless he translate, how will you understand? और जो भाई अनुवाद कर रहे हैं वो भी उनका काम कर रहे हैं। अगर वो अनुवाद ना करें तो कैसे हम समझ पाएंगे? So he is fulfilling the part of the communication. और इस बातचीत में उनका हिस्सा वो पूरा कर रहे हैं। So he is doing part of the teaching. और सिखाने का कुछ हिस्सा वो कर रहे हैं। And so now you may say, अब आप कहोगे, brother, I am not translating. भाई मैं तो अनुवाद नहीं करता। When I go to church, they are not giving me the mic to teach others.
जब मैं कलीसिया में जाता हूँ मुझे वो माइक नहीं देते कि मैं दूसरों को शिक्षा दूं, but God has given you a family, पर परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है and you have children. और आपके बच्चे हैं। Are you teaching what Jesus has commanded? क्या आप उन्हें वो सब सिखा रहे हो क्या जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है? Yeah, your children, if you teach by your life and by words what Jesus has commanded, अगर आप अपने बच्चों को सिखाओ अपने जीवन से और अपने शब्दों से जो भी यीशु ने आज्ञा दी है, you are making your children as disciples. फिर आप अपने बच्चों को शिष्य बना रहे हो। When Jesus was in this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, throughout his life, उसके जीवन भर and especially the last 3.5 years of his ministry, और विशेषकर उसके सेवकाई के आखिरी जो 3.5 वर्ष थे, he could make 11 people as disciples. वो 11 लोगों को शिष्य बना पाया। And you can make 2 people as disciples, your और children. आप 2 लोगों को शिष्य बना सकते हो अपने बच्चों को। It's a big ministry. ये एक बड़ी सेवकाई है And they will make so many other people as disciples. और वे कई अन्य लोगों को शिष्य बनाएंगे। Your children can bless other children आपके बच्चे दूसरे बच्चों को आशीषित कर पाएंगे through the good spirit which they have received from the parents. उस अच्छे आत्मा के द्वारा जो उन्हें अपने माता पिता से मिली है। Loving God, परमेश्वर से प्रेम करना hating iniquity, और अधर्म से घृणा करना, hating sin, पाप से नफरत करना yeah, not speaking bad words. और गलत शब्द अपशब्द ना कहना। So you are part of this plan. और आप इस योजना के हिस्सा हो। Then you can claim this promise. Lord, you said, I am always with you. Lord, you be with me. तब आप इस वायदे पर दावा कर सकते हो कि प्रभु तूने कहा कि तू निरंतर मेरे साथ होगा, अब तू मेरे साथ रहे प्रभु। So there are many blessings which comes with responsibility. और कई आशीषें हैं जिनके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। Yeah. So now being a child of God is a blessing. अब परमेश्वर की संतान होना ये एक आशीष की बात है। John chapter 3 and verse 1. 1 John chapter 3 and verse 1. पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पहला वचन। We are called the children of God. हमें परमेश्वर की संतान कहा गया है। Yeah, that's a big blessing. एक बड़ी आशीष है। And what's the responsibility? और उसके पीछे जिम्मेदारी क्या है? Yeah, the same chapter we read. उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं 7th verse. 7वां वचन। 1 John chapter 3 and verse 7. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 7वां वचन। Little children, हे बालकों, let no one deceive you. किसी के भरमाने में न आना। You practice righteousness तुम धर्म के काम करो and be righteous as he is righteous. और उसके समान धर्मी बनो जो खुद धर्मी है। See, this is a responsibility of being children of God. और देखिए परमेश्वर की संतान होने के नाते ये एक जिम्मेदारी है। In fact, we come back to chapter 3 and verse 1. अगर फिर एक बार हम 3रे अध्याय के पहले वचन में आए तो See how great a love the Father has shown unto us, that we should be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। And there is a link between the previous verse and this verse. और पिछले वचन और इस वचन में एक चीज है जो उन दोनों को जोड़ती है। Yeah, previous chapter and the last verse. और इसके पहले का अध्याय आखिरी वचन। Yeah, 28th verse it says little children. और 28 वचन पहला यूहन्ना 2:28 कहता है हे बालकों, Abide in him. उसमें बने रहो। 29th verse. 29 वचन। If you know that he is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of him. यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। So, and then he says, what a blessing that we are called the children of God. फिर वो कहता है देखो कैसे आशीष की बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So what God has joined, righteousness and child of God. और देखिए कौन सी चीज को परमेश्वर ने जोड़ा है, धार्मिकता और परमेश्वर की संतान होना। Who practices righteousness is born of God. जो धार्मिकता का अभ्यास करता है, जो धार्मिकता करता है वही परमेश्वर का जन्मा है। You cannot separate these two things. आप इन दो चीजों को अलग नहीं कर सकते। You can't say I am born of God but I don't practice righteousness. आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर का जन्मा तो हूं पर मैं धार्मिकता के काम नहीं करता। Might be righteousness, the word is a tough word. शायद धार्मिकता ये शब्द एक कठिन शब्द होगा। You may say, brother, I don't understand what is this righteousness. आप कह सकते हो कि भाई मैं ये नहीं समझ पाता कि ये धार्मिकता क्या है। Yeah, read 10th verse, chapter 3 and verse 10. 3रे अध्याय के 10वें वचन को पढ़िए। Yeah, there we find what is righteousness. वहां हम देखते हैं कि धार्मिकता क्या है। I will read that 10th verse, 1 John 3:10. I will read it. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 10वां वचन में पढ़ता हूं।
By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। So, in this verse, we find doing the righteousness is loving your brother. और इस वचन में हम देखते हैं कि धार्मिकता करना मतलब अपने भाई से प्रेम करना। And he is also giving a case study, और उसी के साथ साथ वहां वो एक केस स्टडी देता है yeah, from the Old Testament पुराने नियम से, about Cain. कैन के विषय में। Cain could not love his brother. कैन अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाया। Why? क्यों? His acts were evil and his brother's acts were good. क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। 12th verse. 12वां वचन, Yeah, his brother's acts were righteous. उसके भाई के काम धर्म के थे, His deeds were evil. उसके काम दुष्ट थे या बुरे थे। So he started having jealousy. इसलिए उसके अंदर जलन होने लगी। So jealousy is part of unrighteousness. और जलन ये अधर्म का भाग है। And when he doesn't cleanse, when one does not cleanse the jealousy, और जब एक व्यक्ति अपने अंदर की जलन को शुद्ध नहीं करता तो the jealousy grows and becomes anger. वो जलन बढ़ते जाती है और आखिर में वो गुस्से में तब्दील हो जाती है। And if you don't cleanse that anger, अगर उस गुस्से को आप शुद्ध ना करो तो it grows and become hatred. वो उन्नति करके बढ़ के वो नफरत में बदल जाता है। And even then, if you don't cleanse, और तब भी अगर आप उसे शुद्ध ना करो तो that hatred grows and it drives you to kill your brother. नफरत बढ़ते जाती है, आपको विवश कर देती है कि आप अपने भाई की हत्या करो। So he took a stone and hit against his brother. और उसने एक पत्थर लेकर अपने भाई के मारा, And brother fell down, it was bleeding and he died. और भाई गिर पड़ा, उसके सिर से लहू आने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। Yeah. In the church, we don't take stones and throw at people और कलीसिया में हम पत्थर उठाकर लोगों पर नहीं फेंकते, because police will catch us. क्योंकि पुलिस हमें पकड़ लेगी। Because in Abel and Cain's time, there were no police. क्योंकि कैन और हाबिल के समय कोई पुलिस नहीं थी। No police office or commissioner's office, no कोई- SP, DSP. कोई पुलिस का दफ्तर नहीं था, कमिश्नर नहीं था, एसपी डीएसपी नहीं था। Now we have so many people around us. अब हमारे आसपास इतने लोग हैं, So we are very careful. इसलिए हम बहुत सतर्क हैं। So in these days, it's very difficult whether to find out whether we are fearing God or fearing police. और इसलिए इन दिनों में इस बात को खोजना बहुत मुश्किल है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या पुलिस से डरते हैं, Or the legal system of our country. या हमारे देश का जो कानून है उससे हम डरते हैं क्या? Because that if you throw stone, he will go and give a complaint to the police. क्योंकि अगर हम किसी पर पत्थर फेंकेंगे तो सामने वाला जाकर पुलिस में हमारी शिकायत करेगा And he will lodge an FIR. और वो एफआईआर करवा देगा। And you will not get passport. तब हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। Even if you have a passport, you cannot travel abroad. अगर पासपोर्ट होगा तो भी आप विदेश नहीं जा पाओगे। So many complications. कई चीजें बढ़ते जाएगी। So there are enough reasons to make you not to throw stones. और इसलिए कई कारण है क्यों आप कुछ लोगों पर पत्थर नहीं फेंकते। But we can throw stones of accusations, पर हम दोष लगाने के पत्थर फेंक सकते हैं। accusing brothers, भाइयों पर दोष लगाना, accusing sisters. बहनों पर दोष लगाना, That is equivalent to throwing stones. ये उसी के समान है पत्थर फेंकने के। It is not a physical stone. ये कोई शारीरिक पत्थर नहीं है, It is a psychological stone. वो एक मनोवैज्ञानिक पत्थर है, Emotional stones. भावनात्मक पत्थर है, Stones of words. और अपने शब्द रूपी पत्थर है। Other person does not fall physically, सामने वाला व्यक्ति शारीरिक तौर पर नहीं गिर पड़ता, but spiritually he becomes discouraged. पर आत्मिक तौर पर वो निराश हो जाता है। He becomes very much discouraged and worried. वो बहुत ज्यादा निराश और चिंताग्रस्त हो जाता है। And sometimes he becomes quiet. कभी कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है। Because when I start talking, somebody throws stone. क्योंकि जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो कोई पत्थर फेंकता है। This is not the way to talk. ये बात करने का तरीका नहीं है। You have spoken like this. तुमने ऐसे कहा था, Stones. पत्थर फेंकना। Yeah. When the woman was caught in adultery. जब वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, Yeah, we read that in John chapter 8. हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। She was brought to Jesus उसे यीशु के पास लाया गया by the religious people.
और धर्मी लोगों के द्वारा। They said, Moses' law says that such a woman has to be killed by throwing stones. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु यीशु मूसा का नियम शास्त्र व्यवस्था कहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यभिचार में पकड़ा गया पथराव करके मार दिया जाना चाहिए। And she was condemned and she was standing and she knew that she is going to die. और वो दंड आज्ञा के नीचे थी, वो वहां खड़ी थी और वो जानती थी कि उसकी मृत्यु होने ही वाली है। So these people wanted to test Jesus, और ये लोग यीशु की परीक्षा करना चाहते थे, whether he is going to obey the Moses law or not. वो मूसा की व्यवस्था को मानेगा या नहीं मानेगा। So they wanted to find fault with Jesus. और वो यीशु के अंदर कोई दोष या कमी खोजना चाहते थे। So they were waiting. वे रुके हुए थे। But Jesus was listening to the Father. अब यीशु पिता की सुन रहा था। Lord, in this critical situation, प्रभु, इस कठिन समय में I need heavenly wisdom. मुझे स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है। Heavenly Father sent the heavenly wisdom. और स्वर्गीय पिता ने स्वर्गीय बुद्धि उसे दी। And he told the people, और उसने लोगों से कहा, he who does not have sin, throw first the stone at her. और तुम में जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। What happened? क्या हुआ? Not even one was left there to throw stones. वहां एक भी व्यक्ति नहीं बचा जो पत्थर फेंक सके। Everybody was convicted and their conscience and they left. हर किसी के का विवेक में वो कायल हुआ कि वो पापी है और वे वहां से चले गए। Oh, I have committed sin. नहीं, मैंने भी पाप किया है। I have committed sin. मैंने पाप किया है। I have committed many sins. मैंने कई पाप किए हैं। Only thing was I was very clever and I have hidden my sin. इकलौती चीज थी कि मैं इतना बुद्धिमान, इतना चतुर था कि मैंने अपने पाप को छिपा लिया है। Many would have thought, oh, I have hidden this to my wife. She should not come to know. Let me go away. और कई लोगों ने सोचा होगा कि अरे ये पाप तो मैंने अपने पत्नी से छिपाया, उसे नहीं मालूम होना चाहिए, मैं निकल जाता हूँ। I think some of them would have thought, oh, Jesus, he would have revealed our sins also. Before that, let me leave this place. और कुछ लोगों ने सोचा होगा, अरे यहाँ यीशु तो मेरे भी पापों को सबके सामने उजागर कर देगा, उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। Like that, nobody was there to throw stone. वैसे वहां कोई भी नहीं बचा पत्थर फेंकने के लिए। Are we having a better conscience than them? क्या उनसे बेहतर विवेक हमारा है क्या? If we have a better conscience than them, they were living in the Old Testament time. अगर उनसे बेहतर विवेक हमारा है, क्योंकि वे लोग पुराने नियम में रहते थे। Their hearts were not cleansed by the precious blood of Jesus. उनके हृदय यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से शुद्ध नहीं हुए थे। But our hearts are cleansed by the precious blood of Jesus. पर हमारे हृदय जो है वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से शुद्ध किए गए हैं। We read in Hebrews that even our conscience is cleansed by the blood of Jesus. और हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि हमारा विवेक भी यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। So that benefit they did not have. और ये लाभ उन लोगों को नहीं था। I will show that verse to you. Hebrews. मैं आपको वो वचन दिखाता हूँ, इब्रानियों की पत्री, I think chapter 9. उसका 9वां अध्याय। Yeah. Chapter 10 and verse 22. 10वां अध्याय 22 वचन। Yeah. 22 it says our conscience is cleansed. और वहां लिखा है कि हमारा विवेक भी शुद्ध किया जाता है। Yeah. So our conscience is cleansed by the blood of Christ. और मसीह के लहू के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है। Yeah. And how much benefit we have और कितना फायदा हमें है spiritually आत्मिक तौर पर compared to the Old Testament people. पुराने नियम से के लोगों से अगर हम तुलना करें तो। But they were all convicted in their conscience and they did not throw stones. They left that place. पर वे सब के सब अपने विवेक में कायल हुए और उन्होंने पत्थर नहीं फेंके, वे वहां से निकल गए। They were not even curious to find out who will throw stone at her. और यहाँ तक कि ये जानने के लिए भी उनकी कोई चाहत नहीं थी कि अब बचे हुए में से कौन उन पर पत्थर फेंकेगा। ये ऐसा नहीं थी। Nobody wanted to know what is going to happen to that woman. कोई भी व्यक्ति जानना भी नहीं चाहता था कि अरे उस स्त्री का क्या होने वाला है। To such an extent, they were convicted in their conscience. इस मात्रा तक, इस हद तक वे अपने विवेक में उनको एहसास हुआ। I'm sure some of them would have accepted Jesus Christ after that time, after the death of Jesus Christ. मैं निश्चित हूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनमें से कुछ लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा। We don't know. हम नहीं जानते। Maybe we see them in heaven. शायद हम उनमें से कुछ लोगों को स्वर्ग में देखेंगे। Yeah, some people may testify. I was one among them, standing there, and I was convicted, and after that, I accepted Christ. और शायद कोई व्यक्ति गवाही देगा कि मैं उन लोगों में से खड़ा था पथराव करने के लिए, पर जब यीशु ने कहा तो मैं कायल हुआ और
अब बाद में मैंने यीशु को स्वीकार किया, But now what do we see among the spiritual people? पर अब हम आत्मिक लोगों में क्या देखते हैं? Throwing stones, पत्थर फेंकना, judging others, दूसरों का न्याय करना, accusing others, दूसरों पर दोष लगाना, accusing our fellow believers. हमारे संगी विश्वासियों पर दोष लगाना। What does it show? ये क्या दिखाता है? My conscience is not that sensitive even compared to those Old Testament people. और उन पुराने नियम के लोगों की तुलना में भी मेरा विवेक उतना संवेदनशील नहीं है। They never took a stone. उन्होंने कभी पत्थर नहीं लिया। In fact, they had some stones, उनके पास पत्थर तो थे, but they threw it down, put it on the ground. पर उन्होंने उन पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया। And you have 5 or 6 accusations against your brother and against your sister. और आपके भाई या बहन के खिलाफ आपके 5 या 6 ऐसे दोष हैं आपको लगाने के लिए। You have 5 or 6 stones against your husband or against your wife. आपके पति या पत्नी के खिलाफ आपके 5-6 पत्थर हैं। One common stone is that my husband is not loving me. एक बहुत ही आम ऐसा पत्थर है कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। Yeah, my wife is not obeying me. मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। Yeah, she is not listening to me. वो मेरी सुनती नहीं। And so many stones we may have. और कई ऐसे पत्थर हमारे अंदर हो सकते हैं। But once we are convicted, should we not throw all the stones down on the earth? पर एक बार जब प्रभु हमें अपने पाप का एहसास दिलाता है, क्या हमने ये सारे पत्थरों को जमीन पर नीचे फेंक दिया जाना चाहिए क्या? Lord, what a great sinner I am. प्रभु मैं क्या ही बड़ा पापी हूँ। How much you have forgiven me, Lord. इतना तूने मुझे क्षमा किया है प्रभु। Now how can I throw stones at somebody? प्रभु अब मैं कैसे किसी और पर पत्थर फेंकूं? Lord, let me be patient with them. प्रभु मैं उनके साथ धीरज रखना चाहता हूँ। We read in Revelation chapter 12 and verse 11. हम प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में पढ़ते हैं। Yeah, the devil is doing a full-time job. और शैतान एक पूर्णकालीन सेवा करता है। He is called the accuser of the brethren. उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहाँ है? What is accusation? वो दोष क्या है? Yeah, he is not right. वो सही नहीं है। He is doing like this. वो ऐसा करता है। He is doing like that. वो वैसा करता है। So day and night, he keeps on accusing. और दिन रात वो दोष लगाते रहता है। Yeah. So what a bad work he does. और कितना बुरा काम वो करता है। And when we also start accusing our brethren, और जब हम भी अपने भाइयों पर दोष लगाने लगते हैं, what we do? हम क्या करते हैं? We shake hands with the devil. हम शैतान से हाथ मिला लेते हैं। I'll read that verse, Revelation 12 and verse 10. मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12-11। The accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night. और हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। See, we saw the woman caught in adultery, the stones they all put down and they left their place. हमने उस स्त्री को देखा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। दोष लगाने वालों ने अपने पत्थर नीचे फेंक कर वे घर चले गए। And here the devil is having tons and tons of stones. और यहाँ शैतान के पास कई टन्स और टन्स वजन के पत्थर हैं। And many believers are going to the devil and I want 10 stones against this brother, 5 stones against this sister, against my wife, against her husband. We are collecting stones from the devil. और कई विश्वासी शैतान के पास जाकर कहते हैं कि देखो इस भाई के खिलाफ मुझे 10 पत्थर चाहिए, इस भाई के खिलाफ 5 पत्थर चाहिए, मेरे पति के पत्नी के खिलाफ हम पत्थर इकट्ठा करते हैं। And we want to throw it at them. और हम उन पत्थरों को उन पर फेंकना चाहते हैं। And what happens? और क्या होता है? The person who got all the stone throws, जिस व्यक्ति पर सारे पत्थर फेंके गए, gets discouraged. वो निराश हो जाता है। But that is not an excuse to get discouraged. पर ये निराश होने के लिए कोई बहाना नहीं है। If people throw accusations at you, अगर लोग आप पर दोष लगाए तो। now I am coming to the next group of people. अब मैं दूसरे श्रेणी के लोगों पर आता हूँ। When somebody accuses you, जब कोई आप पर दोष लगाता है, yeah, Jesus never opened his mouth. यीशु ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। He was like a sheep which is dumb. वो एक भेड़ के समान था जो बिल्कुल गूंगा समान था। He never replied to many of their accusations. उनके कई दोष जो थे उन पर उसने उत्तर भी नहीं दिया। He never justified himself. उसने कभी अपने को सही नहीं ठहराया। He never defended himself. उसने कभी अपने बचाव नहीं किया। Then how did Jesus behave? फिर यीशु ने कैसा बर्ताव किया? We read 1 Peter हम पढ़ते हैं पहला पत्रस chapter 2, दूसरा अध्याय, 1 Peter chapter 2 पहला पत्रस दूसरा अध्याय and verses 22 and 23. और 22 और 23 वचन। Yeah, who committed no sin, जिसने कोई पाप नहीं किया,
nor was any deceit found in his mouth. और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। He was, while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमका नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। So, reviled means scolded, और यहाँ लिखा है गाली सुनकर, पर डांट खाकर इसका मतलब होता है अंग्रेजी or में, accused. या आरोप जब उस पर लगाया गया, He did not scold them back. उसने फिर उन्हें नहीं डांटा पलटकर, He did not accuse them. उसने पलटकर उन्हें उन पर आरोप नहीं किया। See, when our wives point out the mistakes of the husbands, जब हमारी पत्नियां पति की गलतियों को दिखाते हैं तो what immediately comes to your mind? तुरंत हमारे मन में क्या आता है? Oh, on that day, didn't you do this, do that? उस दिन तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया था क्या? Didn't you do that way? उस तरीके से तुमने नहीं किया था क्या? Didn't you speak like that? क्या तुमने ऐसे बात नहीं की थी क्या? Why are you blaming me? क्यों तुम मुझ पर दोष लगाती हो? That is reviling back, वो है पलटकर डांटना, reviling in return, और बदले में उन पर डांटना, उन्हें डांटना and shutting their mouth. और उनका मुंह बंद कर देना। No, that is not a godly way. ये एक ईश्वरीय तरीका नहीं है। She should have done many things in the past. शायद उसने अतीत में कई चीजें की है, You have not pointed out आपने उस समय नहीं दिखाए होंगे, because you are spiritually matured and you are a godly man. क्योंकि आप आत्मिक तौर पर प्रौढ़ हो और आप एक ईश्वरीय जन हो। But now, when she points out something to you, पर जब वो आपके अंदर कोई पाप दिखाती है तो are गलत we trying to recall all the bad things she has done? फिर क्या हम वापस याद करने की कोशिश करते हैं क्या उन सारे बुरे चीजों को जो उसने की है? But our flesh is like that. पर हमारा शरीर वैसा है, We are tempted to speak like that. हम प्रलोभित होते हैं कि हम वैसे बात करें, But we should say, Lord, I don't want to speak. पर हमें कहना है कि प्रभु मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, I die to that situation. मैं उस परिस्थिति में अपने आप के प्रति मरता हूँ, Yeah, I die to that temptation to talk back. और फिर पलटकर बात करने के उस प्रलोभन के प्रति मैं मरता हूँ। So, and he did not utter any threat. और उसने उन्हें कोई धमकी नहीं दी। Yeah, sometimes we may say, I will go and tell the elder. कभी कभी हम धमकी देते हैं कि मैं जाकर प्राचीन को बता दूंगा। Wife may tell her husband, पत्नी शायद पति से कह सकती है, or husband may tell the wife, या पति पत्नी से कह सकता है, or sometimes children may tell to the parents, या कभी बच्चे माता पिता से कह सकते हैं, Daddy, Mummy, you are fighting, I am going to tell the elder. और मम्मी पापा आप झगड़ा करते हो, मैं जाकर प्राचीन को बता दूंगा, Or I am going to write to Brother Zach. या मैं भाई जैक को पत्र लिखकर बताऊंगा। Or sometime against the elders, the believers may do like that. या प्राचीनों के खिलाफ कई बार विश्वासी ऐसा करते हैं। Yeah, anonymous letters and complaint letters. These are all stones and accusations. और बिना किसी नाम के पत्र लिखना, और ये सारे पत्थर है, आरोप है। But if it is genuine thing, like Chloe, you can write. पर अगर वो एक सही चीज है तो क्लोए के समान आप लिख सकते हो। She did not write because she was treated badly. पर क्लोए ने वो पत्र इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उससे दुर्व्यवहार किया गया। She wrote because the church was affected. उसने इसलिए लिखा क्योंकि कलीसिया पर उसका परिणाम हो रहा था। Now somebody is treating me bad. अब कोई व्यक्ति मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, So what I say, मैं क्या कहता हूँ? Lord, I don't want to retaliate. प्रभु मैं पलटकर उसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता, I don't want to scold them back. मैं उन्हें डांटना नहीं चाहता, But Lord, I commit that fellow into your hands. पर प्रभु उस व्यक्ति को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। You do what is right for them. जो सही है तू वो कर, Let them repent. उन्हें मन फिराने दे। So we commit those people to God. और उन चीजों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। But see what Jesus did. पर देखिए यीशु ने क्या किया। When people reviled him, जब लोगों ने उसे डांटा, he kept submitting himself to God. उसने अपने आप को वो परमेश्वर के हाथ में सौंपते रहा। You can read the last sentence, but kept entrusting himself to him who judges righteously. 23 वचन का अंतिम भाग, उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंपते रहा। Yeah, Lord, you are a righteous God. प्रभु तू धर्मी परमेश्वर है, I am committing myself to you. मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। Judge me, Lord, if I am unrighteous. अगर मैं अधर्मी हूं तो तू मेरा न्याय कर प्रभु। Judge me, Lord, if I am wrong. अगर मैं गलत हूं तो तू मेरा न्याय कर प्रभु। I want to be pleasing to you, Lord. मैं तुझे प्रसन्न करने वाला होना चाहता हूँ I प्रभु। want to have good thoughts, Lord. मैं अच्छे विचार रखना चाहता हूँ प्रभु। I don't want to hate anyone, Lord. मैं किसी से घृणा नहीं करना चाहता I प्रभु। don't want to have unloving attitude to anybody. किसी के भी प्रति प्रेम न करने का रवैया नहीं रखना चाहता प्रभु। That's how Jesus kept on entrusting himself to God. ऐसे ही यीशु
अपने आप को पिता के हाथ में सौंपते रहा। So the first responsibility is to be righteous. पहली जिम्मेदारी है धर्मी होने की। And we saw the case study of Cain. और हमने कैन के विषय में देखा, Cain threw stone at Abel. कैन ने हाबिल पर पत्थर फेंका। He was in the Old Testament. वो पुराने नियम में था, But God warned him. पर परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी थी, But he did not listen to the warning. उसने उस चेतावनी को नहीं सुना, He kept on going in his own way. वो अपने ही मार्ग पर चलते रहा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God out of love may warn you. परमेश्वर अपने प्रेम में शायद आपको चेतावनी देगा। You are having an unloving attitude towards that person. उस व्यक्ति के प्रति आपका एक प्रेम न करने का रवैया है। You are trying to accuse the other person. आप दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे You हो, are trying to judge the other person. आप दूसरे व्यक्ति का न्याय करने की कोशिश कर रहे हो। You do not know all the facts. आप सारे सत्यों को नहीं जानते। You judge according to what you have seen. जो आपने देखा है उसके आधार पर आप न्याय करते हो। What you have seen may not be the full picture. जो आपने देखा है वो शायद पूरा सत्य नहीं होगा। Yeah. Then we come to the next responsibility. फिर हम अगली जिम्मेदारी को देखते हैं। If we are called the children of God, अगर हम परमेश्वर के संतान बुलाए गए हैं, we read in the 9th verse, 1 John chapter 3 and verse 9. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। 1 John chapter 3 and verse 9. पहला यूहन्ना 3:9। What does he say? वो क्या कहता है? No one who is born of God practices sin, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, because his seed abides in him. क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। He cannot sin और वो पाप कर ही नहीं सकता, because he is born of God. क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। See, born of God comes twice in the small verse. इस छोटे वचन में परमेश्वर का जन्मा 2 बार आता है। And between these two born of God words comes the seed. और परमेश्वर से जन्मा इन 2 कथनों के बीच में बीज ये शब्द आता है। It is not because of our ability that we are not sinning. ये हमारे क्षमता से नहीं है कि हम पाप नहीं कर रहे, It is because of his seed that is in us. बल्कि उसके बीज की वजह से जो हम में है। See, when a child is born and the child is growing, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, and some of the features of the father or mother is seen in the child. और उस माता पिता के कुछ जो लक्षण है वो उस बच्चे में दिखाई पड़ते हैं। The way he walks, कुछ विशेषताएं कि कैसे वो चलता है, the way he gets angry, कैसे वो गुस्सा होता है, anything. कोई भी चीज। Why? क्यों? Because he carries the gene of his parents. क्योंकि अपने माता पिता का जो जीन है वो लेकर घूमता है। And when the gene grows, multiplies, he starts behaving like his parents. और जैसे वो बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता की तरह बर्ताव करने लगता है। Sometimes great grandparents character also comes and manifests. कभी कभी परदादा का चरित्र भी बच्चों में प्रकट होने लगता है। The same way spiritually when we are born again, बिल्कुल वैसे ही आत्मिक तौर पर जब हमारा नया जन्म होता है, in spirit we have the gene of God. हमारी आत्मा में परमेश्वर का एक जीन मौजूद है। That is called the seed उसे बीज कहा गया है or the DNA. या डीएनए कहा गया है। Lot of codes are written. उसमें कई ऐसे कोड्स लिखे हुए हैं The codes are the divine nature, और वो सारे कोड है ईश्वरीय स्वभाव, the character of God. परमेश्वर का चरित्र। The primary code is love, और प्राथमिक जो कोड है वो है प्रेम, the love of God. परमेश्वर का प्रेम। That is written in the DNA code. ये उस डीएनए में कोड में लिखा हुआ है। And the Holy Spirit starts writing again and again. और पवित्र आत्मा बार बार लिखना आरंभ करता है। That is called the new covenant. उसे नई वाचा कहा गया है। And the Holy Spirit is writing in our hearts. और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में लिखता है। In the Old Testament, पुराने नियम में he wrote in the stone. उसने पत्थर पर लिखा, Now he writes in our hearts. अब वो हमारे हृदयों में लिखता है। That is a code he is writing. एक कोड है जो वो लिख रहा है। And now I start practicing like how God will behave. और अब मैं वो लागू करने लगता हूँ कि कैसे परमेश्वर बर्ताव करेगा। That's why we read in 1 John 2 and verse 6. इसी वजह से पहला यूहन्ना 2:6 में हम पढ़ते हैं, One who abides in him need to walk like Jesus walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। I would like to point out 3 things. मैं 3 चीजें आप
3 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता Jesus walked in light. हूँ। यीशु मसीह ज्योति में चलता था, Jesus walked in humility. यीशु नम्रता में चलता था, Jesus walked in love. यीशु मसीह प्रेम में चलता था। So if we are the children of God अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो and we will love like him, हम उसकी समान उसी की तरह प्रेम करेंगे। we will not sin. हम पाप नहीं करेंगे, We may fall into sin. हम शायद पाप में गिरेंगे, That is different. वो बात अलग है, But we will not enjoy committing sin. पर पाप करने में हमें आनंद नहीं मिलेगा। We will not intentionally go and commit sin. जानबूझकर हम जाकर पाप नहीं करेंगे। That's what 2nd chapter 1 John verse 2 says. और वही पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता है। No, 1 John chapter 2 and verse 1 says, सॉरी, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन, I am writing this so that you should not sin. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। Yeah, we should not sin. हमें पाप नहीं करना है। And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. और यदि कोई पाप करे तो हमारा पिता के पास एक सहायक या वकील है जो यीशु मसीह है। So hating our own brother is a sin. और अपने भाई से नफरत करना ये एक पाप है। And another responsibility is एक और जिम्मेदारी ये है, chapter 5 and verse 1. 5वां अध्याय पहला वचन, 1 John chapter 5 and verse 1. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पहला वचन, Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Whoever loves the Father loves the child born of him. और जो कोई पिता से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। By this we know that we love the children of God when we love God. इससे हम जानते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते जब हम उसके संतानों से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, We can't see God. क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। Somebody says, I love God means how to see that? अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, कैसे हमें ये दिखेगा? But we can see through something else. पर हम किसी और चीज से इसे देख पाएंगे। Whether this brother is loving the children of that God. क्या ये भाई उस परमेश्वर के संतानों से प्रेम करता है क्या? It is like in your father's house there are 4 children. जैसे आपके पिता के घर में अगर 4 बच्चे हैं, You are the first or second. आप पहले या दूसरे हो, And you will love them आप उनसे प्रेम करोगे because they are all your father's children. क्योंकि वे सब आपके पिता के बच्चे हैं। Yeah, the same way. बिल्कुल वैसे ही If you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, it is manifested in loving our brothers. ये प्रकट होता है जब हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। So may God help us to know him better, to love him better, and to love our brothers better. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसे बेहतर जाने, उससे बेहतर प्रेम करें और अपने भाइयों से बेहतर प्रेम करें। Let us do righteousness आइए हम धार्मिकता को करें, and let us not sin, आइए हम पाप न करें, and let us love God's children. और आइए हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम करें। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, what a great privilege, Lord, that we are called as your children. क्या ये बड़े सौभाग्य की बात है प्रभु कि हम तेरे संतान कहलाते हैं। You have shown the lavish love upon us, Lord. तूने हम पर अपने उदार प्रेम को उंडेला है प्रभु। We are thankful for that blessing. हम उस आशीष के लिए धन्यवादी हैं। At the same time, Lord, as your children, we have a responsibility. बिल्कुल वैसे ही प्रभु, तेरे बच्चे होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी है। Help us, Lord, to carry out a responsibility. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सके। We don't want to throw stones at anybody, Lord, हम किसी पर भी पत्थर नहीं फेंकना चाहते प्रभु, but we want to love them, Lord. पर हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं। Fill our hearts with more and more of your love. हमारे हृदयों को अधिक और अधिक तेरे प्रेम से भर दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।